जगत जियो भरा मत फिरे नित चारो खानी ज्ञानी जोगी पिला रहे सब मन की गानी भाग जगा मेरा आदिका मिले सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहि वेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है अधर ठिकानी बिना शांत पाए
জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমীয় গ্রন্থ চলার সাথে থেকে বাণী পাঠ করছি। সেবাবিহীনের দাবি। মানুষের সেবা যাতে সে স্বস্তি, শান্তি ও আনন্দ পায়, অন্তত এমনতর কিছু না করে নেবার বেলায় আপনার বলে দাবি করে নিতে যেও না। তাতে পাওয়া তো হয়ই না, বরং লাঞ্ছনা ও তাচ্ছিল্যই তোমাকে অপঘাতে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয়গুরু। নারীর নীতি। স্বামী প্রতিষ্ঠা, গুরুজন সেবা। স্বামীর যদি উন্নতি বা প্রতিষ্ঠা চাও, তবে তোমার শ্বশুর শাশুড়ির সেবা হইতে কখনোই বিমুখ হইও না, কারণ তাহাই তাহাদের হইতে তোমার স্বামী উদ্ভূত হইয়াছেন, আর তাহারই তাহার আদিম মঙ্গলকামী। যদিও এ কামনার ভিতরেও ভ্রান্তি থাকিতে পারে, স্বামী যদি ভ্রান্ত হইয়া ইহাতে অনুচ্ছুক হন, তাহা লঙ্ঘন করিয়া তাহাদের সেবা করিলে মঙ্গলই হইবে। শ্বশুর যদি ভ্রষ্টাচার সম্পন্নও হন, তথাপি তাহার সেবামুখ হইও না, বরং সহচর্য বিরত থাকিও, দেখিবে মঙ্গলকেই উপঢৌকন পাইবে। বাণী সংখ্যা 120। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয় গুরু। জয়গুরু। পূজনীয়া সাধনাদি রচিত প্রার্থনা। আমার ইষ্ট, আমার আদর্শ, আজ থেকে আমার জীবন তোমার। তোমার বৃদ্ধি আমার বৃদ্ধিকে স্পর্শ করুক। তোমাকে প্রতিষ্ঠা করাই আমার জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত হোক। নারীর নীতিতে তুমি বলেছ, তুমি কল্যাণীরূপে, সতীরূপে, নারীরূপে আমাকে আমার বৈশিষ্ট্যে বর্ধনশীলা দেখতে চাও। শপথ করছি, আমার জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমি তোমার এই ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। তুমি সুস্থ দীর্ঘায়ু হও আমার জীবন, আমি তোমায় অর্ঘ্য দিলাম। তুমি উজ্জ্বল হয়ে ওঠো পুলকে জীবনে যশে আর মহান সম্বেগে। নারী আমি অমৃতের অধিকারিণী, আশীর্বাদ করো যেন এই অফুরন্ত অমৃত দিয়ে নিপীড়িত ব্যতীত কর্মিষ্ঠ আদর্শ অনুপ্রাণ রক্ষে আমি অপূর্ব প্রাণন স্নানে স্নাত করিয়ে তোমারই দিকে তাকে আরও এগিয়ে দিতে পারি। তুমি আমাকে ভালোবাসবার অধিকারিণী করেছ, আমি আমার সব ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে তোমাকে সতেজ দীপ্ত জীবনময় দেখতে চাই। তুমি এই শুভক্ষণে আশীর্বাদ করো যেন আমি এমনইভাবেই আমার চলায় তোমাকে, তোমার ইচ্ছাকে মূর্ত করে তোমার মহান অভিযানকে অবাধ করে তুলতে পারি। আমার অস্থি বৃদ্ধির পরম উদ্ধাতা, আমার প্রিয় পরম, জন্ম জন্মান্তরের বহু তপস্যার ফলে তোমাকে পেয়েছি আমরা। আমাদের এই জীবনে সার্থক হয়েছে আমাদের জন্ম, ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি তোমার চরণ স্পর্শ করে। যুগের পর যুগ তপস্যা করেও দেবতারা যাকে মূর্ত করে তুলতে পারেননি, কত পুণ্য ফলে সেই তোমাকে করেছি মূর্ত। অরূপ ভগবানকে করেছি মানুষ ভগবান, দয়াল কত ভাগ্য আমাদের প্রিয়তম। আজ এই শুভক্ষণে তোমার চরণে শুধু এই প্রার্থনা আমাদের, তুমি দীর্ঘায়ু হও, সুস্থ হও, সুখী হও, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আর দাও আমাদের সেই প্রেরণা যা আমাদের সক্ষম করে তুলবে বাছা বাড়ার অপূর্ব সৌরভ ছড়াতে ছড়াতে সপরিপার্শ্বিক আমাদিগকে তোমার জীবন বৃদ্ধির অনুকূল করে গড়ে তুলতে। অগদরদি বন্ধু, আমার সর্বস্ব তুমি, আমার জীবন আমি জানি। তোমার মতো বন্ধু, তোমার মতো প্রিয় আমার আর কেউ নেই। তোমার প্রতিকর্মে প্রতিভঙ্গিতে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। আশীর্বাদ করো দয়াল, আমি যেন মুহূর্তের জন্য ভুলি না
তুমি আমার প্রেষ্ঠ, তুমি আমার অনুকূল, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ। তাই প্রার্থনা দাসীর তোমার জীবন চিরবর্ধনে বর্ধিত হয়ে উঠুক। তোমার বৃদ্ধি আমার বুদ্ধিকে স্পর্শ করুক। আমার নারীত্ব ধন্য হোক, সার্থক হোক তোমার নারীর নীতি প্রতিপালনে। অঘপ্রিয় রাজা ধীরা সম্রাট তুমি থাকো, তুমি বাছো। আমাদের জীবন চলনার প্রতি পদক্ষেপে ধ্বনিত হয়ে উঠুক স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয়গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের পাঁচালী গীত পরিবেশন করছি। তোরা শোন রে ভাই, তোরা শোন রে ভাই, বলে যাই বাঁচা বাড়ার পথ, যে পথে চলেছে ঠাকুর অনুকূলের রথ। শোনো পুণ্য কথা, শোনো পুণ্য কথা, তার বারতা কহি বিবরণ, যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন। এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ, মহাপুরুষ অনুকূল রায়, পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায়। গ্রাম হিমায়তপুরে, গ্রাম হিমায়তপুরে, পদ্মা তীরে জেলা পাবনায়, শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয়। মাতা মনমোহিনী, মাতা মনমোহিনী, তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী, যার গৃহে জন্ম নিলেন ত্রিলোকের পতি। করে গৃহ আলো, করে গৃহ আলো, প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল, যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজে চরণ রাতুল। তার রূপ দেখে, তার রূপ দেখে, ভাব দেখে কহনে না যায়, ভুবন মোহন রূপে সবারে ভুলায়। শোনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা, মাধুরীমা নাহি পারাবার, নররূপে এলো সেজে দেব অবতার। শোনো ধর্মের কথা, শোনো ধর্মের কথা, তার বারতা অতি চমৎকার, বাঁচা বাড়াই আসল নীতি, ধর্ম করো সার। করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার, সদাচার ঋষি বাক্য পালো, প্রতিবেশীর সেবা করে ইষ্টপথে চলো। এই তো আর্য নীতি, এই তো আর্য নীতি, ধর্মনীতি, হিংসা দেশ ছাড়ো, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো। পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম, করো প্রেম ইষ্টকর্ম করো, যজন যাজন ইষ্টভৃতি যথাবিধি পালো। পালো সস্তয়নী, পালো সস্তয়নী, মহান বাণী পালন করো ভাই, ত্রিজগতে নামের সম ঔষধ আর নাই। এ তো বাঁচার পথ, এ তো বাঁচার পথ, ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই, বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই। করো আর্য সমাজ, গড়ো আর্য সমাজ, বাড়াও ধাজ আর্য কৃষ্টি রাখো, বুদ্ধ ঈশায় রসুল কৃষ্ণের সমান চোখে দেখো। তারাই পূর্বতন, তারাই পূর্বতন, বর্তমান ঠাকুর অনুকূল, তার বিধি মেনে চলো, কাটাও মনের ভুল। পাবে মহাশান্তি, পাবে মহাশান্তি, যাবে ভ্রান্তি, পাবে সত্য যুগ, কালো বাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মহারোগ। ভাইরে ভয় নাই, ভাইরে ভয় নাই, টান ভাই অনুকূলের রথ, ধর্ম নষ্ট নাহি হবে, পাবে বাঁচার পথ। এই সৎসঙ্গে, এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করহ বিহার, অধম সন্তান ভজে পদযুগল তার। জয় পুরুষোত্তম, জয় পুরুষোত্তম, রসুল নাম বুদ্ধ যিশু নাম, শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘন শ্যাম। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। जय गुरु सभी को मेरा यहाँ पर। आज मैं एक ओडिया भजन गाने जा रही हूँ। आहा की देखिली बातायन खोली, सुंदरता बनार बेशा। आहा की देखिली बातायन खोली, सुंदरता बनार बेशा। परम पुरुष परमेश आहा की देख
परम पुरुष परमेश्वर आह की देखिली बताय न खोली सुंदर तब नरवेश से दिनु बिजनी से दिने से रूप भाविली मने मने से दिनु बिजनी से दिने से रूप भाविली मने मने कोटि पुण्य फले श्रीचरण तले कोटि पुण्य फले श्रीचरण तले करिदेल प्रभु नित्य दास तुम आह की देखिली बताय न खोली सुंदर तब नरवेश मन कथा मोर मनी थिला एति दिन इच्छा पूर्ण हेला मन कथा मोर मनी थिला एति दिन इच्छा पूर्ण हेला अंगे श्रीहरण प्राणी जागे प्राण अंगे श्रीहरण प्राणी जागे प्राण मन वृंदावने नित्य रास तुम आह की देखिली बताय न खोली सुंदर तब नरवेश बांधी देल तब प्रीति फांदे अदर्शनी मोर मन कांदे बांधी देल तब प्रीति फांदे अदर्शनी मोर मन कांदे कपट चतुरी भांगी दिय हरि कपट चतुरी भांगी दिय हरि चूर्ण करी अन्य भिलास आह की देखिली बताय न खोली सुंदर तब नरवेश आह की देखिली बताय न खोली सुंदर तब नरवेश सुंदर तब नरवेश सुंदर तब नरवेश जय गुरु। Oh
आराध्या जगतजननी श्री श्री बड़मा के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रथम जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दादा के चरणों में मेरा प्रणाम। वर्तमान जुगाचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सभी माँ को मेरा जय गुरु। आज मुझे कुछ आलोचना रखने के लिए कहा है। ठाकुर जी की बातें अनंत हैं, असीम हैं। वो एक सागर से भी कहीं ज़्यादा गंभीर हैं, जिसको हम लोग माप नहीं सकते, जिसको हम लोग कह नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हम जितना भी पढ़ें उसमें कहीं ना कहीं भूल त्रुटि तो रह ही जाती है। हम यहाँ नहीं कर मैं अपनी ही बात बोलूँगी कि दीक्षा, शिक्षा और विवाह के बारे में ठाकुर जी ने इस पे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण एक अपनी बातें रखी हैं इन तीनों चीज़ों पर, क्योंकि इसी से ही समाज गठन होता है और जागरूक होता है और उन्नति के पथ पर चलता है। हमें नहीं पता कि हम लोग पहले क्या थे, हम लोगों ने पहले क्या किया है हम लोगों का, पर लेकिन इतना तो हमें श्योर है कि हमें पहले जन्म में भी ठाकुर जी ही प्राप्त हुए होंगे। ठाकुर जी के ऐसे गुरु हैं, उनको अगर हम लोग अपने मन प्राण वचन से अगर उन्हें ही सिर्फ प्यार करें, उन्हें ही सिर्फ चाहें जीवन में कि हे दयाल, सिर्फ मैं आपको ही चाहती हूँ और इस चाहने में मेरी कोई भी प्रत्याशा नहीं है कि हाँ मैं आपको चाह रही हूँ तो आप मुझे कुछ दे दीजिएगा या फिर कुछ हो जाएगा मेरे साथ, कुछ चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी को ये सब चमत्कार, ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी, तो हमें भी नहीं पसंद होना चाहिए। तो उसी तरह पूर्व जन्म में भी ठाकुर जी हमारे ही गुरु थे और इस जन्म में भी हमें ठाकुर जी ही गुरु के रूप में मिले हैं। वो सिर्फ एक गुरु नहीं है, एक आदर्श गुरु, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पति, एक आदर्श साथी उनमें देखने को मिला है। ठाकुर जी की बातें तो महान जो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो उनके संग लाभ किए हैं, हमें उनसे बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। लेकिन जो खुद की अनुभूति है, जैसे कि सत्यानुसरण में बोला गया है कि अनुभूति से जो जाना जाए वही है ज्ञान। तो इसका मतलब हम लोग उनको अनुभूति आएगी कैसे अगर हम लोग उन्हें अनुभव कर पाएँ। हम एक सेकंड हमें ऐसा लगे कि ठाकुर जी मेरे पास हैं, और ऐसा लगने के लिए हमें करना पड़ेगा, ऐसा लगने के लिए हमें वैसा ही करना पड़ेगा जैसे कि ठाकुर जी ने प्राय तो हर जगह बोला है। ठाकुर जी बोलते हैं कि नाम और नाम ही अभेद हैं। तुम जितना क्षण भर नाम करोगे तुम्हें महसूस होगा, तुम्हें लगेगा कि मैं खुद तुम्हारे पास हूँ। तो ठाकुर जी से एक भक्त बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ दुनिया में। ठाकुर जी बोलते हैं तो तुम अकेले कैसे हो, तुम नाम करते हो तो तुम नामी के पास ही हो हमेशा, तो तुम अकेले कैसे हो। उसी प्रकार उस व्याख्या से हमें इतना तो समझ आना चाहिए कि नाम और नामी अभेद हैं। नाम से अलग नामी नहीं है, नामी से अलग नाम नहीं है। हम सिर्फ ठाकुर जी का नाम लेते रहे, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने उनका जो प्रदत्त सतमंत्र दिया है और जो होली नेम दिया है, अगर हम लोग उसको कम से कम समय निकाल कर, जैसे कि ठाकुर जी ने बोला है, उठते बैठते चलते खाते पीते सोते, ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि हमारे एक जो सांस ले रहे हैं और जो हमें पता चल रहा है कि हाँ अभी मैं सांस ले रही हूँ, अभी मैं सांस नहीं ले रही हूँ, उस सब चीज़ों में भी हमें पता लगना चाहिए कि मेरे हर सांस में मेरे ठाकुर जी, हर सांस में मेरे वो सतनाम है, जिससे कि उस डोर से ठाकुर जी मेरे पास हैं। ये चीज़ होने के लिए हमें खुद को एक सदाचारी मनुष्य बनाना पड़ेगा। सदाचारी मनुष्य ठाकुर जी ने 3 प्रकार का बोला है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। ये सदाचारी तो कंपलसरी है।
अगर हम लोग शारीरिक सदाचार नहीं मेंटेन करेंगे तो हमारा मानसिक सदाचार जो है वो डिपेंड करता है शारीरिक सदाचार पे। वो चीज़ मेंटेन नहीं होगी अगर हम लोग शारीरिक सदाचार मेंटेन नहीं करेंगे तो। शारीरिक सदाचार ये नहीं कि केवल नहा लिए या फिर अच्छे से हम लोग मतलब दिखने लग गए, आईना के आगे खड़े होकर देखने लगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, अच्छी लग रही हूँ, वो शारीरिक सदाचार नहीं है। शारीरिक सदाचार जैसे कि ठाकुर जी ने बोला है कि तुम माँ लोगों को खास कर कि तुम लोग बातें करो, किस मतलब हेल्प करो, सहायता करो, लेकिन घुल मिल कर नहीं। वो होता है हमारा एक तरह का शारीरिक सदाचार। शारीरिक सदाचार के बाद हमारा मानसिक सदाचार भी सही रहेगा। मानसिक सदाचार के बाद आता है हमारा आध्यात्मिक सदाचार। आध्यात्मिक सदाचार के लिए हमें ये दो जो बेस हैं उसके, इन दोनों बेस को पकड़कर ऊपर उठना पड़ेगा, तभी जाके हमारा आध्यात्मिक सदाचार में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। ये सब चीज़ें मतलब कहीं और तो हमें जो स्कूल से या फिर हमारे कॉलेज से सीखने को नहीं मिला है। एक स्पिरिचुअल टीचर जो है, एक स्पिरिचुअल गाइडर जो है, एक स्पिरिचुअल गुरु जो हैं वही हमें सिखा सकते हैं, और हमारे पास ऑलरेडी ही हमारे ठाकुर जी हैं। इस पावन मास के इस जो श्रावण महीने में बड़ माँ का आलोचन खूब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं कि बड़ो माँ जैसे उन्होंने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी। ठाकुर जी क्यों इस चीज़ को बोले हैं, क्यों किस लिए इतना गुरुत्व दिए हैं कि बड़ माँ की तरह ही हमें बनना चाहिए। हम लोग बड़ माँ के तरह नहीं बन सकते, लेकिन उनके बताए हुए कुछ उसूलों पे, कुछ उनके जो डिसिप्लिन्स हैं उस पर हम लोग चल सकते हैं। उस पर हम लोग अपने कदम रख के एक दो स्टेप अब आगे नियत अपने कर्म में आगे बढ़ सकते हैं। ठाकुर जी मतलब ठाकुर जी परम प्रेमी हैं, तो माँ भी परम दयालु हैं, माँ भी परम प्रेममयी हैं। वो जैसे कि हम सबको पता है, बाहर से वो सख्त लेकिन अंदर से एकदम मक्खन जैसा है। वो किसी की मतलब किसी का जो दुख है वो नहीं सह पाती, वो तुरंत ही उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ऐसे देती थी जिससे कि उसका निवारण हो जाता था, जिससे कि कुछ सॉल्यूशन मिल जाता था। कुछ किया उस सॉल्यूशन से उसका उनका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता था। ये थी हमारी बड़ माँ। बड़ माँ को हम लोग जैसे देख रहे हैं, वो इतना सादा सीधा होकर भी अपने आप को उन्होंने ऐसा बना के रखा हुआ है कि हर कोई ही उनके पास आकर माँ 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 कर कर पुकारता है। लेकिन आज के टाइम पर हमें देखकर, मुझे देखकर कोई माँ माँ नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि मेरा आचरण ही ठीक नहीं है, तो मुझे कौन क्यों माँ बोलेगा। हमेशा उस ठाकुर जी बोलते हैं उस नज़र को, उस बुद्धि को पहचानो, उस इतनी तीक्ष्ण होनी चाहिए तुम्हारी बुद्धि, मतलब उस नज़र को पहचानने के लिए कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलना चाहता है और कौन किस तरीके से देख रहा है। इस चीज़ के लिए खुद ये जो 3 प्रकार की जो सदाचार हैं वो माँ लोगों को छोटेपन से ही सीखना चाहिए। उनके माँओं से, उनके दादी माँ से, उनके नानी माँ से, उनके घर पे जो भी बड़े जो माँ लोग हैं उनसे सीखना चाहिए। उसके साथ साथ नाम को कॉन्टिन्यूसली करना चाहिए, मीन्स करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम लोग बहुत ही डल हैं इन सब चीज़ों में, हम लोग करना नहीं चाहते, हम लोग प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बस हम चाहते हैं कि हाँ सब कुछ हो जाए, हम लोग ठाकुर जी को पकड़ें, सब कुछ ठीक है। पकड़ने से नहीं होता है, एक भी मतलब कोई भी चीज़ पकड़ने से नहीं होती। जैसे कि क्लास में एक बच्चा जाता है, मैडम उसे बोल देती है कि तुम ये करो, लेकिन वो बच्चा हाँ बोल देता है, बस वो सोचता है कि मेरा एडमिशन तो हुआ है और मैं इन टीचर का छात्रा हूँ या छात्र हूँ तो मुझे काम मिला है बस। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सरेंडर टू हिम और हर। इसीलिए
उस काम को करना पड़ेगा, उस काम को करके चेक करवाना पड़ेगा। यहाँ पर ठाकुर जी ने जजन जाजन जो बोला है वही है चेक करना, चेक करवाना। मीन्स हम लोग जो डेली कर रहे हैं उसको एनालाइज करें एवं उस चीज़ को रीचेक करें एवं उसे दूसरों के आगे लेकर आएं। जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूँगी कि मैंने आज जैसे कि जो स्वतः अनुज्ञा पाठ में बोला गया है, मैं क्रोधी मैं अमानी, मैं क्रोधी मैं अमानी, एक इसी लाइन को ही मैं क्रोधी। मुझे आज जैसे कि मतलब किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, मैं उस चीज़ को उसी टाइम तुरंत ही सोचूंगी कि अगर ये सत्य है, इसको नतमस्तक होकर मैं सबके सामने लाऊं, ऐसा लाऊं कि वो लोग भी समझे कि हाँ ये जो चीज़ है वो सत्य है, ये सत्य पे आधारित है। लेकिन गुस्से से लेके आऊँगी तो सामने वाला भी चिढ़ेगा, वो भी गुस्सा करेगा, वो मेरी बातें नहीं सुनेगा। तो उसी प्रकार मैं क्रोधी, तो इसी एक ही वर्ड को मैं अगर 24 घंटे एक ही दिन में सोचूं कि मुझे आज क्रोध नहीं करना है, मुझे आज किसी पे गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कोई भी कुछ भी बोले, तो एक टाइम पर, ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये एक टाइम पे ऐसे आएगा कि 1 हफ्ता जाएगा, 2 हफ्ता जाएगा, तीसरे हफ्ते में आपको अपने अंदर एक चेंजेस नज़र आएगा। वो चेंजेस जो होगा वो आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। आप में एक साम्य प्राण भाव वो विकसित होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को चलना चाहिए। बहुत लोग बहुत अच्छी बातें ठाकुर जी की, बौड़ माँ की, बौड़ता की, पूरे ठाकुर परिवार की बहुत ही अच्छी उनके पास अनुभूति है। वो लोग खुद अनुभव करे हैं, देखे हैं, जाने हैं, सुने हैं, उनके पास जाते हैं, नहीं जाते भी थे। लेकिन सिर्फ मतलब मेरी तो उतनी अनुभूति ये सब कुछ भी नहीं है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी, अगर हम लोग ठाकुर जी के संतान हैं तो अपने अंदर से सबसे पहले दुर्बलता हटानी पड़ेगी। वो किसी भी प्रकार की दुर्बलता हो सकती है, चाहे जैसे कि ठाकुर जी की एक दुर्बलता थी रसगुल्ला खाने की, वो भी हमारे अंदर हो सकता है कि हम लोग इधर उधर खाते हों, मुझे गोलगप्पा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है या फिर कोई और चीज़ करने की इच्छा होती है। तो ये सब मतलब ठाकुर जी ने मना नहीं किया है कर्म करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन उतना भर करो जिससे कि आपका शरीर, आपका मन ये सब कंट्रोल में रहे। अगर इसे बहिर्भूत हो जाता है, इसे बाहर निकल जाता है तो हम लोग उसके वो जो प्रवृत्ति है उसके फांसे में आ जाते हैं। तो लास्ट में माँ के बारे में इतना ही कहूँगी कि हम सबको माँ की तरह ही सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, कहना चाहिए, देखना चाहिए कि वो एक कैसे स्वामी परायणा थी, वो कैसे अपने संतान चर्चा की, कैसे अपने सास ससुर इतने बड़े परिवार के साथ पूरे सत्संग जो विश्व भर के लिए वो जगत जननी बन गई, उन्होंने कैसे किया। वो चीज़ तो एक जन्म में नहीं होगा, दूसरे जन्म में नहीं होगा, तीसरे जन्म में नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट धीरे धीरे करने से जो मतलब जमा होते होते वो कब इतना बड़ा रूप ले लेगा हमारे अंदर, वो कब मतलब विकसित हो जाएगा, कब वो सबके सामने प्रस्फुटित हो जाएगा, वो हम लोगों को भी नहीं पता चलेगा। हमें दूसरों से पता चलेगा कि हाँ तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था, वैसा। और हम लोग के अंदर ही ये अच्छा और बुरा दोनों ही, बुरा भी अगर जम के एकदम इतना बड़ा जमाट बांध लेगा तो उससे भी हमें लोग यही बोलेंगे कि तुमने तो कल ऐसे रिएक्ट किया था, तुमने ऐसे बोला था, तुमने ऐसे अपशब्द बोले थे। तो सब चीज़ जो होती है वो अपना टाइम लेती ही है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन हमें इतना सोचना चाहिए कि मैं गलत हो सकती हूँ लेकिन मेरे ठाकुर जी कभी गलत नहीं हो सकते हैं। उन्होंने जो 30,000 वाणियाँ दी हैं, जो फिलॉसफी आइडियोलॉजीज उन्होंने लिखे हैं, वो कभी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने खुद अपने श्रीमुख से एक एक वाणी, एक एक शब्द, एक एक प्रश्न उत्तर दिए हैं उस टाइम के
तो उन्हें जो जो पूछा। तो इतना ही बोल के मैं यही कहूँगी कि हम लोग ऐसे ही ठाकुर जी को पकड़कर ऐसे ही उनके रास्ते पे अग्रसर होते रहें, दूसरों को भी कराएं, प्रेरणा दें, क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं धर्म का मतलब ही है अपने बचना, दूसरों को बचाना, इसको ही तो धर्म समझना। अगर हम सिर्फ खुद ही बचेंगे और ठाकुर जी के रास्ते पे चलेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पूरा पार्षिक तो मेरे पास होगा नहीं, तो मैं किसके साथ हंसूंगी, खेलूंगी, बातें करूंगी, किसके साथ मिलजुल कर रहूँगी। तो ठाकुर जी को मेरे साथ लेके ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठाकुर जी मुझे पसंद करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उन्हें पसंद करना है, ये बाध्य होना चाहिए कि मैं उनसे प्यार करूं और उनका काम करूं, वो भी निष्ठा पर भाव से, कोई बिना प्रत्याशा के। तो इतना ही बोल के आज इस ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में सभी माँ और तत्सहित उनके परिवार जनों के मंगल कामना करते हुए यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय।
परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। मातृ सम्मिलन की जय। मातृ सम्मिलन की जय। मातृ सम्मिलन की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यप्रीतिं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्टि दैवतम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी की जय।